Hello, my dear friends. Now we are going to discuss here chapter 9, that is the looping statement in QBasic. My name is Vishwadev Ari, and in this chapter we are going to discuss about the statements. In the previous chapter we are discussing about the conditional statements, and in this chapter we are going to discuss about the looping statement. So let's go for the explanation. Learning objectives of this chapter are the loops, and for next statements, do loop statements, and in last exit command. So loops and iteration statements. First of all, the first learning objective is the loops, and loops is also called iteration statements. So first of all, discuss what is loops. So looping statements are the statements which help in creating the loops. So in the previous chapter you have already learned that QBasic is a programming language, and you have learned about some of the statements such as REM statement for writing a remark or a comment in the program which does not execute it. Okay, for displaying numbers, messages and value of the variables on the output screen. When you want output on the screen, you make use of the print statement. To clear the output screen, you put the CLS statement. Okay, or for clearing the previous results of the previous programs, you put CLS statement. For assigning a value to a variable, you use the let statement, and for taking a value from the user and storing it in a variable, you use the input statement. Okay, so these are all the statements you use. And the conditional statements, in the previous chapter we discussed about the conditional statements, that is if then else, if else. Okay, now we are going to discuss about the looping statement. So looping statements are the statements which help in creating the loops. Loops means that is the iteration statement. Iteration means while writing a program you want to repeat the execution. Certain times of statements you want that this certain types of statements executes again and again. Okay, repeat again and again a number of times. For this you use loops. Okay, and हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट है प्रोग्राम में वो बार बार, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम में जो बार बार एग्जीक्यूट हो, बार बार रिपीट हो, उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स का, और उस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं इटरेशन स्टेटमेंट्स. ओके, दिस इज कॉल्ड लूपिंग और इटरेशन. इसको हम लूपिंग कहते हैं या फिर इटरेशन कहते हैं. व्हेन QBasic गोज थ्रू अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार जब QBasic का प्रोग्राम किसी स्टेटमेंट को रन करता है तो वहां पे हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट विच हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग द लूप्स. और अब हम देखेंगे कि सम ऑफ द बेसिक लूपिंग स्टेटमेंट्स विच यू लर्न इन द QBasic इज, फर्स्ट इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड इज द डू लूप स्टेटमेंट. तो दो टाइप्स के लूपिंग स्टेटमेंट हैं. पहला है फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड है डू लूप स्टेटमेंट. सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ डू लूप स्टेटमेंट, और डू लूप स्टेटमेंट के भी दो फॉर्म्स हैं. ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे QBasic विंडो पे और प्रोग्राम भी रन करेंगे. सो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट हो गया डू लूप स्टेटमेंट. दो फॉर्म्स हैं डू लूप स्टेटमेंट के. पहला है डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट और दूसरा है डू अंटिल लूप स्टेटमेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर next statement. Okay, for next statement let's go to the QBasic window, click on the QBasic shortcut
and go to the QBasic window, and we are going to discuss here the for next statement. For next statement. Okay, but before that, one thing I want to tell you, that any looping statement must have the following four components. First component is the initialization. We put here REM for the commenting purpose because our interpreter doesn't recognize it. So the first component, there are four components. There are four components of a looping statement. There are four components. First is the initialization. Okay. Second is the termination. Third is the step up down. Termination. Third is step up down. Put here REM. Okay, now, and the fourth one is the body of the loop. Okay, so there are four components of a looping statement. First is the initialization, second is the termination, third one is step up down, and fourth one is the body of the loop. Okay, this one is the fourth is the body of the loop. So initialization, the value from where the loop starts is the initialization. वो पॉइंट जहां से लूप स्टार्ट होता है, मीन्स वो वैल्यू जिससे कि हम इनिशियलाइज करते हैं लूप को. टर्मिनेशन, द वैल्यू एट विच द लूप एंड्स, किस वैल्यू पर लूप एंड होता है. जैसे कि हमने इटरेशन स्टार्ट किया, मीन्स रिपीटिशन स्टार्ट किया व्हेन द वैल्यू ऑफ योर मार्क्स इज 20
अगर मार्क्स आपके किसी सब्जेक्ट में 20 हैं, मतलब ये यूनिट टेस्ट में मार्क्स आपके 20 में 20 हैं, तो मैसेज शो होना चाहिए, और जितने सब्जेक्ट्स में 20 हैं उन सब में एक मैसेज शो हो। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से हुआ? 20 से, और एंड हम करेंगे अगर 10 से कम है। ओके, हम एंड करते हैं अगर 10 से कम है तो मैसेज शो ना हो। ओके, तो किस वैल्यू पे टर्मिनेट हो रहा है और किस वैल्यू पर इनिशियलाइज हो रहा है ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है स्टेप अप डाउन, स्पेसिफाइज हाउ द लूप मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लूप आगे चलेगा या लूप पीछे चलेगा। ओके, एंड लास्ट इज द बॉडी ऑफ द लूप, दैट इज द स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। ओके, लूप के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट्स होंगे। ओके, तो पहले हम इनिशियलाइज करेंगे लूप को, फिर उसे वैल्यू देंगे कि किस वैल्यू पे वो टर्मिनेट होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा लूप है वो फॉरवर्ड चल रहा है कि बैकवर्ड चल रहा है, मीन्स हमें उसे किस डायरेक्शन में ले जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। और उसके एट द लास्ट हम सेट करेंगे बॉडी ऑफ द लूप। हमने इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, टर्मिनेशन भी कर दिया, ये भी सेट कर दिया कि लूप फॉरवर्ड जाएगा और बैकवर्ड जाएगा। उसके बाद कौन कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे ये हम बॉडी ऑफ द लूप में रखेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है हमारा, यानी कि पहला जो हमारा लूप है वो है हमारा फॉर नेक्स्ट लूप। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फॉर नेक्स्ट लूप। When you want a group of statements to be executed a specific number of times, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट होते रहें, then you need to use for next statement. Okay, अब पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. What is the syntax of for next statement? Syntax for next statement. Syntax of okay, syntax of for next statement. What is the syntax for the for next statement? Put here rem. Okay, let's see the syntax. तो syntax हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कीवर्ड for, then first हमने क्या बताया, first component initialization, so we put here the counter variable. Okay, counter variable means वो वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे. ओके, मींस जो हम इनिशियलाइजेशन करेंगे अगर किसी वैल्यू से, तो वो वैल्यू हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो उस वेरिएबल को हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल. ओके, काउंटर वेरिएबल इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, वी गिव हियर इनिशियल वैल्यू, और यहां पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं जिस वैल्यू से वो वैल्यू देंगे, और फाइनल वैल्यू यहां पे हम देंगे फाइनल वैल्यू. ओके, यहां पे हम देंगे फाइनल वैल्यू, और उसके बाद हमें स्टेप वैल्यू देनी है. मींस हम अपने लूप को फॉरवर्ड ले जाएंगे कि हम अपने लूप को बैकवर्ड ले आएंगे. यहां पे हम देंगे स्टेप वैल्यू. ओके, स्टेप वैल्यू के बाद लास्ट में हम करते हैं बॉडी ऑफ द लूप. हम यहां पे rem लिख देते हैं बिकॉज यहां पर rem से ये जो हमारा इंटरप्रेटर है वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा. टेक इट एज ए कमेंट, इसको कमेंट की तरह ले लेगा. उसके बाद फिर हम यहाँ पे rem कर देंगे
it taken as a remark for the commenting. और लास्ट में हमने बताया कि जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है वो है बॉडी ऑफ द लूप. तो बॉडी ऑफ द लूप में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली. तो यहां पर हम देते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन ए लूप टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स in a loop to be executed. ओके, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट लाइन में देते हैं we put here rem because it take it as a comment. और लास्ट में हम यहाँ पे देंगे नेक्स्ट और यहाँ पर हम फिर देंगे काउंटर वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल. नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल, ये कौन सा काउंटर वेरिएबल है? ये वो काउंटर वेरिएबल है जो कि रीड करेगा कि यहां से हमने जो वैल्यू असाइन की थी. ओके, पहले हमने क्या किया कि फॉर लूप को हमने काउंटर वेरिएबल दिया, एक वेरिएबल दिया कि किस पर वैल्यू हमें असाइन करनी है, इनिशियलाइज करनी है. फिर हमने इनिशियल वैल्यू दी और फाइनल वैल्यू दी, फिर स्टेप की वैल्यू दी कि हमें फॉरवर्ड ले जाना है कि बैकवर्ड ले जाना है. फिर हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिया लूप का टू बी एग्जीक्यूटेड मींस बॉडी ऑफ द लूप कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमें बार बार रिपीट करने हैं. और लास्ट में हमने नेक्स्ट दिया काउंटर वेरिएबल दैट इज द नेक्स्ट सी. और नेक्स्ट वैल्यू या जो भी हमें देना है, जो भी वेरिएबल हमें देना है, दैट इज द एंड ऑफ द लूप. और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? यही एंड ऑफ द लूप होगा आपका. तो दिस इज कॉल्ड द फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके, सो इन द सिंटेक्स गिवन हियर, काउंटर इज द न्यूमेरिक वैल्यू विच कंट्रोल्स द लूप एंड इज ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल और इंडेक्स वेरिएबल. इसको हम कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं और इसको इंडेक्स वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि ये लूप को कंट्रोल करता है. काउंटर वेरिएबल क्या करता है? लूप को कंट्रोल करता है. एवरी टाइम द लूप बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड इट्स वैल्यू चेंजेस. जैसे जैसे हमारे इटरेशन यानी कि हमारे लूप्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे बार बार, हमारी वैल्यू चेंज होती रहेगी. मीन्स किसकी वैल्यू? हमारे इनिशियल जो हमने काउंटर वेरिएबल थे उसमें जो वैल्यू हमने दे रखी है वो जब तक फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वैल्यूज चेंज होती रहेंगी. तो काउंटर वेरिएबल का काम क्या है? टू कंट्रोल द लूप. और एक बार जब लूप फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएगा, लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल के लिए फिर हम लास्ट में एंड कर देंगे अपने प्रोग्राम को. ओके, क्योंकि नेक्स्ट काउंटर ही काउंट करेगा कि हमें कहां तक लूप को ले जाना है. ओके, बार बार हम उस काउंटर वेरिएबल से नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल को फॉरवर्ड करते रहेंगे. ओके, इनिशियल वैल्यू इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द काउंटर, फाइनल वैल्यू इज द एंड वैल्यू ऑफ द काउंटर, इंडिकेटिंग द लूप टू एग्जिट. ओके, जैसे ही हमारा लूप इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, काउंटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा. हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल पे आ जाएगा. नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल से फिर वो दूसरी वैल्यू ले लेगा. फाइनल वैल्यू तक जब पहुंच जाएगा तो हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और जो हमारा बॉडी ऑफ द लूप है उससे लूप बाहर आ जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा. स्टेप वैल्यू क्या है? स्टेप वैल्यू है काउंटर वेरिएबल की इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी. मींस हमें लूप को फॉरवर्ड ले जाना है या फिर बैकवर्ड ले आना है. तो स्टेप वैल्यू तो इतनी कंपल्सरी नहीं है. इफ इट इज ओमिटेड, अगर हम स्टेप वैल्यू को हटा भी देते हैं
द काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीज्ड बाय 1 एवरी टाइम। तो अगर हम स्टेप वैल्यू को हटा देते हैं, मींस अगर हमने कोई चीज 1 से स्टार्ट की है और हमें डायरेक्ट 5 पे जाना है तो हम स्टेप वैल्यू 5 कर देंगे। बट अगर हमें वैल्यू को एक एक करके बढ़ाना है, मींस 1 2 3 4 इस तरह हमें इंक्रीज करना है, तो हमें स्टेप वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लूप ऑटोमेटिकली बाय 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, मींस 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एंड ऑफ द लूप, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एंड ऑफ द लूप होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कवर क्या है कि काउंटर वेरिएबल को, जो हमारा फॉर लूप है उसमें जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं काउंटर वेरिएबल की, उसको वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करता रहे। नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल फॉर द फॉर नेक्स्ट लूप। अभी जब हम एग्जांपल समझेंगे तब ये चीजें ज्यादा इजिली अंडरस्टैंडेबल होंगी। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर C. Here we type for loop for C. C is the, what is C? C is the counter variable. Okay, C क्या है? C ही वो काउंटर वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो C इक्वल्स टू, सपोज C इक्वल्स टू 1। ओके, 1 इज द इनिशियल वैल्यू, यानी जो हमारा लूप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। 2 कहां तक जाएगा? हमारा लूप 5 तक जाएगा। 1 to 5 फॉर C इज इक्वल टू 1 to 5। अगर C की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक जानी है तो प्रिंट PRINT प्रिंट I am looping। ओके, I am looping एंड ये हमने दे दिया प्रिंट, यानी कि C को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, फाइनल वैल्यू हमने 5 दे दी। प्रिंट I am looping, ये एक तरीके से बॉडी ऑफ द लूप हो गया। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज द काउंटर वेरिएबल, और काउंटर वेरिएबल हमारा क्या था? C। तो नेक्स्ट से हमारा काउंटर वेरिएबल इंक्रीज होता जाएगा और कहां तक इंक्रीज होगा? अप टू 5 तक। सो लेट्स सी द आउटपुट। 5 टाइम्स I am looping, 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 यानी कि जो हमें आउटपुट मिला है वो 5 टाइम्स टाइप हुआ है। ओके, let's see some more examples. For S is equal to 1 to 8 and step 3 step 3 print S and next S। okay, so we type this program फॉर S इज इक्वल टू 1 to 8। हमने यहाँ पर S को इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जो इटरेशन करना है, मीन्स हमें जो हमारा जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो 1 by 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। 1 से लेकर के 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, लेकिन 1 के बाद ये 3 स्टेप पर डायरेक्ट पहुंचेगा। लेट्स सी। 1
147 देखा, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो पहले 1 आया, उसके बाद 3 ऐड हो गया, दैट इज 4, और फिर 3 ऐड हो गया 7, लेकिन हमने कंडीशन यहाँ पे दे रखी है ये 8, इसलिए केवल 7 तक ही ये लूप चला और 8 से पहले ही ये स्टॉप हो गया. ओके, so these are all the examples of the for next loop using the step value or only for next statement. Now we are going to see the do while loop. So do loop statements are of two types, that is the do while loop and do until loop. So first we discuss about the do while loop. As long as the specified condition is true, we make use of the do while loop. If it is false, the control transfers to the first statement in the loop which marks the loop end. तो इसका सिंटेक्स क्या है पहले हम वो देख लेते हैं. इसमें क्या होता है कि एक हम स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है देन वी मेक द यूज ऑफ द डू व्हाइल लूप. इफ इट इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट में आफ्टर द लूप विच मार्क्स द लूप एंड्स. ओके, तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके और लूप एंड हो जाता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप हमारा एग्जीक्यूट होता है. ओके, लेट्स सी द सिंटेक्स. डू व्हाइल, हमने स्टेटमेंट लिखा डू व्हाइल, देन वी पुट द कंडीशन, देन वी पुट द स्टेटमेंट. इफ द कंडीशन इज ट्रू, then this statement is executed and then loop keyword. Okay, that is do while loop. For example, see b is equal to 3. तो यहां पर हमने इनिशियलाइज किया b को 3 से, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया b is equal to 3. उसके बाद हमने यहां पे कंडीशन लगाई do while b is less than 5. do while b is less than 5, अगर b is less than 5 है then print b and b is equal to b plus 1, that is the condition, और यहाँ पे लूप एंड हो गया. और लास्ट में हम पुट करेंगे एंड कीवर्ड. ओके, उसके बाद जो हमारा दूसरा लूप है वो है डू अंटिल लूप. इसका भी सिंटेक्स सिमिलर है. डू अंटिल, कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. उसके बाद लूप. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. c equal to 3, do until c is less than 4, print c equal to c plus 1, loop and print loop over. Okay, now the main difference between the do while loop and the do until loop, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये इंपॉर्टेंट है. The only difference is that in the do until loop में क्या होता है, the execution of the loop continues as long as the condition is false. जब तक कंडीशन false होती रहती है तब तक do until loop चलता है. It exit if the condition is true. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर लूप हमारा एग्जिट हो जाता है. ओके, बट डू
वाइल लूप में ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप में ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप में कंडीशन जब ट्रू होती है तब हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है, और जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डू अंटिल लूप एंड द डू वाइल लूप। यानी कि जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा डू वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी हमारा डू अंटिल लूप स्टॉप हो जाएगा। नाउ लेट्स go to the QBasic window to see some examples. Okay, now let's go to the QBasic window and see some more examples of for next statement using step value. So let's see this example. REM, for the commenting purpose, REM even numbers from 1 to 50, even numbers from 1 to 50. Okay, CLS, first you type CLS for clear the screen, then from for statement for I, for loop we are using here for loop for I equals to 2 to 50. Okay, because we have to take the even numbers from 1 to 50. So first even number is the 2, and from 2 to 50, and then we use step value, that is step 2, that is on the difference of the 2 digits, 2 then 4 then 6, in this way. Okay, and print I next I, पहला I प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट I जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट I पे आ जाएगा। फॉर लूप इनिशियलाइज होगा 2 से, चलता रहेगा स्टेप 2 के डिफरेंस पे। ओके, 2 के डिफरेंस पे चलता रहेगा, I की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी और नेक्स्ट I से हमारी नेक्स्ट I की वैल्यू आती रहेगी। तो पहले I की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 2 से, फिर एग्जीक्यूशन आ गया नेक्स्ट I पे, नेक्स्ट I की वैल्यू हो गई 4, स्टेप 2 में चला गया हमारा एग्जीक्यूशन, वहां से वैल्यू हो गई 4, फिर वहां से प्रिंट हो गया 4, फिर एग्जीक्यूशन आ गया नेक्स्ट I पे, फिर चला गया वैल्यू स्टेप 2 पे, वहां से हो गया 6 से फिर वैल्यू आ गई फिर नेक्स्ट I पे, प्रिंट हो गई वैल्यू, फिर आ गई नेक्स्ट I पे, और लास्ट में हमने लिखा एंड। ओके, let's see the output of this program. All of you see this, the output of the program, and this program is also given in your book. So 2 4 6 8 10 12 जितने भी इवन नंबर्स हैं अप टू 50 तक के, वो सारे नंबर्स हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डू वाइल लूप। ओके, so let's see the example of the do while loop. REM do while loop. Okay, initialize a value t equals to 8. Do while t is less than 8. Okay, t is equal to 8, t is less than 8, print t। t को हमने इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने वैल्यू असाइन की 8,
उसके बाद डू वाइल कंडीशन हमने दी t इज लेस देन 8, अगर t की वैल्यू लेस देन 8 है तो प्रिंट हो जाए t, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट इज द लूप, ओके। लेट्स सी, सो यहाँ पे हमने ये देखा कि t की जो वैल्यू है वो 8 के इक्वल है, और चूंकि t की वैल्यू 8 के इक्वल है तो हमने जो कंडीशन दी है t इज लेस देन 8, इट डज नॉट प्रिंट t बिकॉज कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो डू वाइल लूप में हमने बताया था कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। डू वाइल लूप में तभी लूप एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे अगर हम लेस देन के बजाय ग्रेटर देन यूज कर लेते हैं तो ओके, लेट्स सी द रिजल्ट। तो भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा है क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा है, okay. In this case the condition t is less than 8 is not true, so the body of the loop is not executed. Before the loop is ended, the counter variable must be incremented or decremented to avoid the infinite loop. If the loop does not terminate, it is called endless or infinite loop, okay. To end such a loop, press control plus break. अगर लूप एंड नहीं हो रहा है और इनफाइनाइट लूप चल रहा है तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस ब्रेक, ओके। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल टू डिस्प्ले इवन नंबर्स लेस देन 20 यूजिंग डू वाइल लूप। CLS put here 20 equals to 20. I give the condition here t equals to t plus 2, okay. Let's see this result. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, okay. It means कि जितने भी इवन नंबर्स हैं लेस देन 20 वो सारे अप टू 20 तक डिस्प्ले हो गए, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने इनिशियलाइज किया डू वाइल लूप को, एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया t इज इक्वल टू 2, फिर हमने डू वाइल लूप लगाया। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो जो हमने वैल्यू दी थी t की 2 वो लेस देन थी और इक्वल टू 20, ओके। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा लूप एग्जीक्यूट हो गया, और जो हमने स्टेप वैल्यू दी थी दैट इज t इक्वल टू t प्लस 2, तो पहला वैल्यू प्रिंट हुई, उसके बाद t प्लस 2। हर बार जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता जा रहा है। कब तक एग्जीक्यूट होगा? 20 तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 20 तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। So in the final and the initial value of the control variable are equal and the step value is 0, then loop executed once. और अगर हम दोनों वैल्यू इक्वल दे देते हैं, एक फैक्ट बिट है जो कि ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों वैल्यू लूप में इक्वल दे देते हैं तो और स्टेप वैल्यू 0 कर देते हैं तो केवल एक बार ही लूप एग्जीक्यूट होगा। लूप executes only one times. Now let's see the example of the do until loop, okay. Do until
do until loop. Do until loop. Let's see the do until loop. C equal to 2. In place of do while, write until C is greater than for, this example is given in your book, for print C and C equal to C plus 1, then loop, then print loop over. Okay, let's see the result. The result is 2 3 4. In this in this do until loop, the value of the C, that is the first value, the value of the C is 2, that is 2 is greater than 4, the condition is false, the loop body is executed, the value of C is incremented to 3. okay, the value of C is incremented to 3. क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही हमने टू until में कंडीशन दी कि C is greater than 4 और C की वैल्यू 2 थी, तो C की वैल्यू greater than 4 है, नहीं है, और हमने बताया है कि until लूप, do until लूप तभी एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रिंट हो गया 2, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई C प्लस 1, मीन्स C की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। फिर कंडीशन टेस्ट हुई, C इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि वैल्यू 3 है C की, 3 जो है वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, 3 की वैल्यू लेस है 4 से, तो यानी कि C की वैल्यू लेस है 4 से। यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखी है C इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप एग्जीक्यूट हो गया। ओके, फिर यहाँ C की वैल्यू बढ़ गई, C प्लस 1 दैट बिकम्स 4, 4 इज ग्रेटर देन 4, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप एग्जीक्यूट हो गया, वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई C प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, और जैसे ही इक्वल टू 5 हुई तो ये हमारा जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो इटरेशन, जो हमारा इंटरप्रेटर था वो इस स्टेटमेंट से C इक्वल टू C प्लस 1 स्टेटमेंट से बाहर आ गया, लूप यहाँ पे एंड हो गया, और ये जो लास्ट लाइन थी ये प्रिंट लूप ओवर, ओके, ये प्रिंट हो गई। इसीलिए जब हमने इसको रन किया तो 2 3 4 तक तो वैल्यू प्रिंट हुई, और जैसी 4 के बाद 5 हुई वैल्यू C इक्वल टू C प्लस 1, तो वहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, लूप एंड हो गया और लूप ओवर हो गया, और ये लाइन प्रिंट हो गई आउटपुट में, लूप ओवर। ओके, and in the last we are going to discuss here the exit command. Okay, the last topic of this chapter is the exit command. Exit command. Let's see the example of the exit command. Before the loop comes to an end on its own, you can exit from a loop yourself. तो जो हम कंडीशन देते हैं लूप में कि इनिशियलाइज करते हैं और फिर फाइनल वैल्यू देते हैं लूप में, तो लूप ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को
उस इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक एग्जीक्यूट होके और लूप एंड हो जाता है। बट इफ यू वांट टू एग्जिट इन बिटवीन द लूप, अगर बीच में ही आप लूप को एग्जिट करना चाहते हैं, लूप से एग्जिट होना चाहते हैं, तो यू यूज द एग्जिट डू स्टेटमेंट इन द डू व्हाइल लूप और डू अनटिल लूप। ओके, तो यहां पर हम एग्जिट कमांड का यूज करेंगे टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द एग्जिट कमांड। ओके, CLS हमने पहले लगा दिया है, A इक्वल्स टू 1 एंड S इक्वल्स टू 0 है। यहां हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, A इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0। फिर हमने यहां पे फॉर लूप लगाया, फॉर I इक्वल्स टू 1 to 10। ओके, S is equal to S plus A, S is equal to S plus A, print A, and in the next line we write A multiplied by A equals to A multiplied by 2 exit for, we use this exit statement, exit for next I, next I, print sum of the series equals to semicolon S, and in the last statement you put here end। okay, तो इस एग्जाम्पल को जरा हम देखते हैं। राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम टू सी हाउ एग्जिट स्टेटमेंट वर्क्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम लूप के बीच से एग्जिट हो जा रहे हैं। यूज द सेम कोड विदाउट एग्जिट। ओके, और अगर हम चाहें तो इसे बिना एग्जिट के भी हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, बट हम बीच में ही एग्जिट हो रहे हैं एग्जिट कमांड यूज करके। ऑल ऑफ यू सी इन दिस प्रोग्राम देयर इज अ exit command here, exit command. So here we take two variables A and S, A equal to 1, S is equal to 0, and we put here for loop for I is equal to 1 to 10। तो I की वैल्यू, I की जो वैल्यू है इनिशियलाइज हुई 1 से और फाइनल वैल्यू हमने दी 10। S is equal to S plus A, यानी कि 1 plus 0, प्रिंट A, A प्रिंट हो जाएगा। A में क्या होगा, A इंटू 2, A में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एग्जिट फॉर नेक्स्ट I। ओके, और यहां से हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा और नेक्स्ट I में नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट I एग्जिट होगा और प्रिंट होगा सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू दिस। ओके, exit for next I। let's see the output of this program। syntax error। okay, यहाँ पर इसको डिलीट करके I कर दो। let's see the 1 and the number of series equal to 1। तो S is equal to S plus A as given in the program। S is equal to 0 and A is equal to 1, so 0 plus 1 equal to 1। तो S is equal to 1, print A, और A में वैल्यू क्या थी 1, and A is equal to A into 2, so sum of the series equal to 1। और जो A equal to A into 2 था means 1 into 2। okay, and it goes to the A, ये प्रिंट नहीं हुआ और यहीं से लूप
एग्जिट हो गया। मीन्स ये हमारा जो लूप है ये यहां से यहां तक तो चला, s इज इक्वल टू s प्लस a एंड प्रिंट a, ओके। बट यहां तक लूप चलने के बाद हमारा लूप एग्जिट हो गया और ये जो नेक्स्ट आई था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, केवल ये प्रिंट हो गया सम ऑफ द सीरीज s। तो जो s में वैल्यू गई थी यहां तक वो केवल वैल्यू यहां पर इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हो गई, और ये जो हमारा स्टेटमेंट था प्रिंट a, केवल यहां तक हमारी वैल्यू, हमारी जो स्टेटमेंट था वो केवल चला, और ये जो हमारा स्टेटमेंट था a इज इक्वल टू a इंटू 2 एग्जिट फॉर नेक्स्ट आई, ओके, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं चला। और लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट था प्रिंट सम ऑफ द सीरीज, ये s केवल ये प्रिंट हुआ, और जो हमारा लूप था i इज इक्वल टू i टू 10, 1 से चलना था 10 तक, ये हमारा लूप नहीं चला और एग्जिट ही हो गया और नेक्स्ट आई पे गया ही नहीं, ओके। सो दिस इज द benefit of the exit command you use in our QBasic programs. So a is equal to 1, s is equal to 0. इस प्रोग्राम हमने देखा a is equal to 1, s is equal to 0 for I is equal to 1 to 10. जो I की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी और फाइनल वैल्यू हमने 10 दी थी, तो s में s प्लस a प्रिंट a इक्वल टू a इंटू 2 एग्जिट फॉर नेक्स्ट आई। तो अगर हमने नेक्स्ट आई के बाद एग्जिट फॉर लगाया होता तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहता अप टू 10 तक। बट हुआ क्या, हमने नेक्स्ट आई के पहले ही लिख दिया एग्जिट फॉर, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट आई था वो नहीं चला, फॉर लूप नहीं चला, और केवल ए की वैल्यू प्रिंट करके, केवल जो हमारी वैल्यू थी वो केवल 1 प्रिंट करके और सम ऑफ द सीरीज यहां से एस की वैल्यू प्रिंट करके और हमें आउटपुट दे दिया, ओके। और हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द डू वाइल लूप, डू अंटिल लूप and the looping statements in QBasic. If you have any doubt regarding any looping statement in QBasic, and if you have any doubt regarding any query in QBasic, you can ask me on my WhatsApp number. Let's go for the next video, and thanks for watching my videos. Okay, so have a nice day and thanks to all of you.